अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बिलाल है। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा टॉपिक है आज महिला शक्तिकरण पर। मैं आज महिला शक्तिकरण के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हमारे समाज में शुरू से ही महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि समाज के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। हमारे समाज के वर्तमान और भविष्य के लिए एक उन्नति के लिए एक बड़ी रुकावट का काम कर रही है। आज हमें चाहिए कि हमारे समाज के लोग नारी शक्ति को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो उनकी शक्ति को नज़रअंदाज ना करके उनको एक समाज में मजबूत अपने समाज का एक मजबूत हिस्सा बनाकर उन्नति की तरफ बढ़ें। जैसे कि हमारे भूतकाल में बहुत सी मशहूर महिलाएं गुजरी हैं, जैसे कि हमारी पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कल्पना चावला आदि। कई महिलाएं आज की समाज में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम भी अपने समाज में शिक्षा पर ध्यान दें, जो कि हमारे समाज में कई इस प्रकार की भलाइयाँ पैदा हो और अपने समाज की उन्नति हो। धन्यवाद। Today I am presenting. I am Ananta Yasin. I am talking about women empowerment. I am not going to other women who serve the world. I just share some lines about my mother. From our birth and still, she served us. Our mother are the reason for our existence. Mother are God gift to humanity. All mothers love their children selflessly. There is nothing as pure as a mother for love their child. My mother is my role model, and all mothers are strong since they have carried us from 9 months in their womb. All people who have a mother are lucky. पूछता है जब कोई मुझसे कि मोहब्बत अब बची है कहाँ। पूछता है जब कोई मुझसे कि मोहब्बत अब बची है कहाँ। मुस्कुरा देती हूँ मैं और याद आ जाती है मुझे मेरी माँ। उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता। उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे न दे पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। A mother's bonding always very lovely and special. Thank you. Thank you for listening. Assalamualaikum to all of you. First of all, I would like to say good afternoon to respected teacher and dear my friends. Today I like to speak on importance of education, which is most known by all of us. Education play a great role in the life of everyone all through the life. Getting proper education is very necessary to get and happy, just like food is necessary to healthy body. It is very important to live luxurious and better life. It develops personality of people, provide physical and mental standard and transform for people living status. Education is the most powerful weapon which can use to change the world. Thank you for listening me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gausia. I study in class 7. Our mother's love for her child is like nothing else in the world. It now no love, no pain. It there is all thing and crushes down
remorses, all that stand in its path. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sania, I study in class 10. Today my topic is fundamental rights. The Constitution guarantees 6 fundamental rights is Indian citizens as follows: rights to equality, rights to freedom, rights against exploitation, rights to freedom of religion, cultural and educational rights, rights to constitutional remedies. Fundamental rights protect the liberties and freedom of the citizens against any invasion by the states and prevent the establishment and dictatorial rule in the country. They are very essential for the all-around development of individuals and the country. I am proud to myself to be an India. Thank you to all of you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My name is Sahnuma Safi. My topic is women's empowerment. Women's empowerment or family empowerment is the process of empowering women. Viewpoints on making an effort to seek them, raising the status of women through education. Awareness, literacy, and training women's empowerment equips and allows women to make life-determining decisions through the different problems in society. They may have the opportunity to advance gender roles or other such roles, which in turn may allow them more freedom to pursue desired goals. Thank you to all of you. Assalamu alaikum. My name is Ansati. My topic is education. To say education is important is an understatement. Education is a weapon to improve one's life. It is probably the most important tool to change one's life. Education for a child begins at home. It is a lifelong process that ends with the education should certainly nutrition the quality of a single life. Education improves one's knowledge, skills, and develops the personality and attitude. A highly educated singer is probably very likely to get a good job. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Ilma Malik. My topic is education. Education is an important aspect that play a huge role in this modern world. People need a good education to be able to survive in this competitive world. Modern society is based on people who have high living standards and knowledge which allow them to implement better solutions to their problems. Education helps to build character as you learn about different cultures, language, and how other people think as well as live. When you have an education, you are able to fulfill the basic needs in life you are taught to get. That's it. Learn self-care and practical life skills. Thank you. Assalamu alaikum everyone. My name is Afsana. I study in class 12. I live in Aligarh. My topic is education. Education is a very important in our life. Education helps to build character and you learn about different culture and language or how other people think as well as when you have an education. You are able to fulfill the basic need in my life. You are taught to get dressed, learn self-care and practical life skills. Thank you. मेरा नाम ताहिरा परवीन है। आज से 9 साल पहले मेरी शादी हुई।
उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं अपनी लाइफ में बहुत पढ़ना चाहती थी और एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन शादी की वजह से मेरा ये ख्वाब अधूरा रह गया। अचानक मुझे सर के बारे में पता चला कि यहाँ जो एम फाउंडेशन जो फ्री में हम लोगों को पढ़ाना चाहता है, हमारी पढ़ाई जो छूट हुई है वो आगे जो है आगे तक ले जाना चाहता है कि हम कुछ कामयाबी हासिल करें और जो बनना चाहते हैं तो अपने ख्वाब पूरे करें इसके ज़रिए। तो मैं एक दिन यहाँ पर आई, सर से मेरी मुलाकात हुई। सर ने मुझे सारे रूल बताए यहाँ की क्या है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो मेरे घर में मैंने हस्बैंड से पूछा कि मैं आगे पढ़ाई कर सकती हूँ, तो वो बोले कि हाँ अगर पढ़ना चाहती हूँ तो पढ़ सकती हो आप। उन्होंने मुझे इजाज़त दी। फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ क्लासेस की, सर ने मुझे कोर्स वगैरह दिए और घर में फिर दिक्कतें आने लगी। मेरी सास कहने लगी कि शादी के बाद क्या करना है, पढ़ लिख कर क्या करोगी, खाने तो बनाना है, खाना अपने आप बना ही रही हो, क्यों पढ़ना चाहती हो। फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अगर ये पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने दो, क्या परेशानी हो रही है आपको। फिर सर ने मुझे कोर्स वगैरह दिया, मैं धीरे धीरे पढ़ने लगी और रात में मुझे जब भी वक्त मिलता, कभी मैं हिंदी की स्टडी करती, कभी इंग्लिश की करती, कभी जो है उर्दू की करती। 3-4 पेज में डेली इसका पढ़ना था मेरा मकसद जो है। और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे देखिए इंशाल्लाह एम फाउंडेशन के ज़रिए मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ। अल्लाह ताला मेरी किस तरह मदद कर रहा है सर के ज़रिए। मैं जो करना चाहती हूँ, अब तो मेरा ये है ख्वाब कि मेरी एक बेटी है, मैं उसको एक अच्छी डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब हासिल करूँ ताकि मैं अपनी बेटी को एक अच्छी डॉक्टर बना सकूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, बाकी लोगों की भी मदद करूँ, जो मेरी तरह नहीं पढ़ पाए हैं उनकी भी मदद करूँ मैं एक जॉब हासिल करने के बाद। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शम्स सर की, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची। Myself Mohammad Suhail. I am 15 years old. I live at Zorabag in Aligarh. Today we are very thankful to our mother because she served us without take any kind of fees. So a big hand to our all mother. Thanks. Assalamualaikum. मेरा नाम शायन है। My father name is Mohammuddin. I live in Aligarh and I study in 10th. So मैं बचपन से मतलब पढ़ना चाहती थी। मेरी मम्मी ने मुझे खूब पढ़ाया, मेहनत करी। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं, तो वो बीमार पड़ गए थे, तो फिर कुछ काम वाम तो था नहीं जिससे कि हम आगे पढ़ सकते। तो मैं 4 साल घर पर बैठी रही, तो मुझे फाउंडेशन के बारे में पता चला। मैं सर के पास सर के पास आए, फिर उन्होंने मुझे गाइड करा, पढ़ने के लिए कोर्स दिया, आगे पढ़ाने के लिए किस तरह मैं उन्होंने मदद करी वो हमें पता है। एंड आगे भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कि मुझे कुछ करूँ, लेकिन मैं फिर भी पढ़ना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ और भी मतलब कर सकूँ आगे। एक तो पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जब चाहो कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Shama. I study in class 10. I am talking about women's empowerment. Women's empowerment can be defined to promoting women's sense of self, what their ability to determine their own choices and their right to influence social change for themselves and others. Women's empowerment and promoting women's rights have emerged as a part of a major global movement and is continue to break new ground in recent years. Days like International Women's Empowerment Day are also gaining momentum. But despite a great deal of progress, women and girls continue to face discrimination and violence in every part of the world. Thanks to all. वालेकुम, मेरा नाम हुमा है। मेरा टॉपिक है नारी शक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के नारे के साथ एक परीक्षा होता है कि क्या महिलाएं सच में मजबूत बनती हैं और क्या उसका संघर्ष करने और क्या उसका लंबे समय का संघर्ष खत्म हो चुका है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं की सच्ची महत्व और उसके अधिकार के लिए
और उसके अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ विकास, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए हैं और लागू हो रहे हैं। भारत में अनपढ़ों की संख्या में महिलाएं सबसे अलग हैं। नारी शक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें। My name is Hiren Arshan. Today I am here to share few fundamental rights: right to equality, right to freedom of religion and culture, and educational rights, right to constitutional. Fundamental rights are a group of rights that have been recognized by a high degree of constitutional. Assalamualaikum to one and all present here. I am Zubna Shahid, of a student of class 10. Today I am going to discuss about a very major topic of women empowerment. So from a very long decade, our society has only thought about the development of a man and to get him educated and feed his family, to get him a stable job, but never thought about women and saw them doing only the household chores and raising her children, never giving her the chance to prove herself what is she worthy of. So we need to change it, because women like Kalpana Chawla, Mother Teresa, Indira Gandhi, Madam, so many wonderful women out there have proved themselves in different fields like sports, politics, and so many more. We women can do anything. We just need to change our mindsets. And this is what we all need to change, not just one person. Thank you. प्राइस, तोहफा, इनकी कोई कीमत नहीं है। बाजार में तमाम चीज़ों की कीमत होती है, ये तमाम इससे बेहतर चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन कोई भी फंक्शन, कोई भी ओकेजन, कोई प्रोग्राम के तहत अगर कोई कंपटीशन जैसी चीज़ के दौरान आप विन करते हैं, उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं, उसके बाद में अगर आपको कोई भी लेवल, कोई भी चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, उसमें अगर कोई आपको प्राइज़ मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, मोमेंटो मिलता है, या ट्रॉफी मिलती है, कोई भी चीज़ मिलती है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि ये चीज़ें बाजार में वाकई में नहीं मिलती। तो मैं ज़्यादा लंबा टाइम लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, बच्चों को दूर भी जाना है। तो आज के विनर्स को जो बॉडी ने डिसाइड किया है, उसमें जो नंबर 3 पर है मिस्टर बिलाल। बिलाल चूँकि एक मदरसे से हैं और मदरसे में जैसे कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जाती है, बट हम लोग अपने लेवल पर भी और दुआएं भी करते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि अब मदारिस के अंदर भी मॉडर्न एजुकेशन को एंडोर्स किया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी उनको फराहम की जाए और वो भी दुनिया में अपना नाम कमा सकें और कामयाबी की जो सीढ़ियाँ चढ़ सकें। चूँकि बिलाल मदरसे के साथ साथ एम फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं और एम फाउंडेशन के जरिए से मॉडर्न एजुकेशन गेन कर रहे हैं और आज की परफॉर्मेंस से उनके एफर्ट्स नजर आए, भले से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना रही हो, अलबत्ता उनकी जो कोशिश है, उनका इस हौसले की उड़ान को और इनके हौसले की उड़ान को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छी कोशिश की। इवन एवरीवन जो भी यहाँ प्रेजेंट्स है, सब लोगों ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोई भी डिसहार्टेड ना हो। यह आज पहला और आखिरी प्रोग्राम नहीं है, आज शुरू किया है। आइंदा होने वाले प्रोग्राम में आप लोगों में से कोई भी फर्स्ट प्राइज विन कर सकता है, सेकंड थर्ड प्राइज विन कर सकता है, लेकिन चूंकि सिस्टम और रूल एक ऐसा होता है कि सारे लोगों को विनर नहीं बनाया जा सकता। अगर वो कैटेगराइज ना करें तो फिर प्रोग्राम का मतलब नहीं होता है।
तो आज के जो 3 विनर्स हैं वो आपके सामने अभी आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा होने वाले प्रोग्राम्स में आप लोगों में से भी विनर्स हो सकते हैं। कल कौन होगा ये कल पता लगेगा। तो आज के तीसरे नंबर के जो विनर्स हैं वो बिलाल साहब, इनके लिए बहुत सारी तालियां एक बार और हो जाए। बिलाल साहब चलिए, थैंक यू वेरी मच। सेकेंड नंबर पर हम इसको बुलाना चाहते हैं, उसका भी नाम मैं अनाउंस करूंगा, अनंता यासीन। अनंता यासीन ने जो परफॉर्मेंस दी उसी लेवल पे बाकी लोगों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो कैलकुलेट की जाती हैं उसके बिहाफ पर किसी न किसी को हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये बेटर, ये मच बेटर। आप लोगों में से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, जो जेस्चर्स होते हैं ना, उन सबको भी कैलकुलेट किया जाता है कि किसका ज़्यादा परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ों में इनपुट ज़्यादा रहा है। तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट यहाँ यही मैंने बताया इसके रूल्स है कि किसी एक को ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो आइंदा आने वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला आप लोग भी यहाँ खड़े होंगे और ये प्राइज आपको भी मिलेगा। और तोहफे और रिवॉर्ड्स जो दिए जाते हैं वो एक बहुत खूबसूरत कामयाबी की शुरुआत होती है। और हम अगर गुज़िश्ता ज़माने के लोगों को देखें और हिस्ट्री में झाँक के देखें तो अक्सरियत ज़्यादातर लोग जो ना हमको एक पुअर बैकग्राउंड से और विलेज से मिलते हैं, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों से। आज भी हमारे यहाँ पर जैवलिन के जो विनर हैं वो भी किसी गांव से थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो उसी तरह से आज यहाँ जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं अलीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए हैं, कोई शाहजमाल से, कोई शहनशाबाद से, कोई जमालपुर से, शाहजमाल से, कोई भुजपुरा से, कोई और दूसरी जगह से। उन दूर में से भी सबसे दूर से जो आई हुई बच्ची है मैं उसके लिए वाकई में तारीफ करूंगा कि उसके पेरेंट्स ने हमारे साथ अपने बच्चों को जोड़कर भेजने के लिए एक फैसला किया कि गांव से 50-60 किलोमीटर दूर से यहाँ बच्ची को रखा और उसको हमारे बीच पढ़ने के लिए छोड़ा। उस बच्ची ने भी इस बात को साबित किया कि अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरे और हमारी उम्मीदों से ज़्यादा उसने अपने आप को साबित किया और एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ दी। ये सब हम लोग जानते हैं। मैं आप उनको बुलाना चाहूँगा, रहनुमा सैफी। रहनुमा सैफी ने भी आज इस बात को साबित कर दिया कि अगर हम कोशिश करें और मेहनत करें तो हर मंजिल आसान हो सकती है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। अब मैं फिर से तीनों लोगों को एक बार यहाँ बुलाना चाहूँगा कि तीनों विनर्स यहाँ पर हमारे सामने आए। आइए आइए। प्रोग्राम यहीं पर खत्म करते हैं और इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अगले महीने लास्ट संडे को फिर से ऐसा ही एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसमें क्या टॉपिक्स रहेंगे तैयारी आप लोग कीजिए और इस वादे के साथ कि आइंदा आप लोग मजीद ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप लोगों ने मेहनत की है, मजीद करेंगे और हौसला रखिए। ये आज जो ना एक दूसरे को विश करने की ज़रूरत है और जेलस ना होकर इंस्पायर होने की जरूरत है कि हम आज इंस्पायर होकर आज इसने जीता है तो हम जीत सकते हैं। और जीत को खुशियों से बांटिए, जेलसी से नहीं। आगे बढ़िए, कल से बड़ा रिवॉर्ड हो सकता है आपको मिलेगा और बहुत सारी चीजें। हमको ये रिवॉर्ड देने का मकसद सिर्फ किसी को ऊपर नीचे करना नहीं, बल्कि एक दूसरे को इंस्पायर करना है कि हमारे अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को बाहर ला सकें। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आज का प्रोग्राम का इंतजाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।